हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इन्वायरमेंट मास्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्लाइमेट, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर इकोसिस्टम, लाइफ फॉर्म्स, and what are the different theories of climate change. Most of the theories have been discussed by me, like continental drift theory, plate tectonic theory, Milankovitch principle of earth rotations की theory, and next theory in the field of climate change that represents the anthropogenic impacts of climate change. How the anthropogenic impacts associated with the climate change. So उसको समझने के लिए main theory है carbon dioxide theory. So how the increased level of carbon dioxide increases the earth's temperature or the surrounding temperature of earth, how it causes the global warming, how different other greenhouse gases cause the global warming, what are the impacts of greenhouse gases. So all these will be discussed by me. So चलते हैं आगे हम लोग. So carbon dioxide theory. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ नॉट द न्यू, दैट इज़ नॉट कि हम लोगों का केवल एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आई, ऐसा नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरल कॉजेस की वजह से, लाइक कि जो नेचुरल कार्बन साइकिल है, they release the carbon dioxide in the natural respiration processes. That carbon dioxide is taken up by the plants and herbivores. That carbon dioxide is being used by the plant for their photosynthesis. After photosynthesis, they release the oxygen to the atmosphere, and during further respirations, they use the oxygen and release the carbon dioxide to the atmosphere during the night times. So whole cycle of carbon dioxide is associated with the carbon cycle. So now the question arises, why the carbon dioxide is going to the major concern for the global warming or the greenhouse gas or the climate change. The reason behind is that in the upper atmosphere and the lower atmosphere, in the troposphere, there is a carbon dioxide accumulations have been taken place due to the natural carbon dioxide release, as well as the anthropogenic or the man-made carbon dioxide release. Reason is that जो man-made carbon dioxide है during our anthropogenic activities, like fossil fuel, more amount of fossil fuel consumptions, more thermal power plants, more vehicle movement on Earth. So all these releases the carbon dioxide to the atmosphere, that increases the level of carbon dioxide in our atmosphere. So how that carbon dioxide is associated with the incoming solar radiation and increases the temperature of Earth. So that is here. Actually, when the incoming solar radiation, this is the surface of Earth. This is the surface of Earth. On this surface of Earth, there is plants and trees. There is also a water body on the surface of Earth. In a water body, on the slopes of a water body, there is a littoral zone in which there is a plants and vegetations also there. There is also phytoplanktons on the surface of a water body. So this is the atmosphere. This is the atmospheric layer where the greenhouse gas is there, and there is also a clouds, water vapor, soot or dust particles, and some other greenhouse gases in this water body, in this atmospheric layer. So how the incoming solar radiation is coming from this atmosphere and interacts with the different layers of atmosphere as well as the earth surface. किस तरीके से incoming solar radiation जो आता है वो surface of earth से and atmosphere से, how it is associated और कौन कौन से interactions होते हैं, these all is here. Actually में this is the sun. सन में क्या है कि हाइड्रोजन, बहुत हायर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है. सो द न्यूक्लियर फिजन होने की वजह से more amount of hydrogen is converted to the helium gas. So there is a very high temperature,
and earth ka temperature is lower than the sun's temperature, so the incoming solar radiation is coming from the sun to the earth. So incoming solar radiation is there. So the incoming solar radiation जब इस surface of atmosphere पे आता है तो इस point पे, that is the upper atmosphere, इस point पे जो incoming solar radiation आप, that is called the total solar irradiance. इस point तक जो radiation आएगा that is called the total solar irradiance. This is called the total solar irradiance. इस अपर एटमॉस्फेयर के जो लेयर है उस पॉइंट तक जितना रेडिएशन आता है दैट इज कॉल्ड द टोटल सोलर इरेडियंस. अब जो ये एटमॉस्फेरिक, जो ये इस एटमॉस्फेयर में जो सोलर इरेडियंस आया है वही रेडिएशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर एंड अर्थ सरफेस तक आता है और डिफरेंट इंटरेक्शन करता है. लाइक देयर इज अ सूट डस्ट पार्टिकल्स. उस सूट और डस्ट पार्टिकल्स और डिफरेंट एरोसॉल्स वगैरह जो है यहाँ पर, उससे कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द एस्केप वापस में. देन सम पार्ट्स ऑफ रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड. एक्चुअली में वी नो द प्लैंक्स कांस्टेंट लाइक द, एक्चुअली में होता क्या है कि E इज इक्वल टू H इंटू C अपॉन लैम्डा. सो हेयर इज द E जो है इनकमिंग टोटल रेडिएशन है, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन. So from here we can know that when the lambda is higher then the energy is lower, okay, and when lambda is lower then the associated energy will higher. So here the energy of incoming solar radiation is very high. That is why there is a lambda is lower. So this is called the short wave. This waves is called the short waves. Okay, here is a short wave, but this energy is higher than the transmitted energy because some part of this energy has been reflected to the escape, some part is transmitted. Okay, and here is also some part of incoming radiation is absorbed by the atmosphere itself. So जो incoming total solar radiation है that is divided in a reflected portion, transmitted portion and absorbed portion. Okay, this transmitted radiation is coming to the surface of earth. This transmitted radiation which is coming to the surface of earth, this is incoming solar radiation to the surface of earth, is used up by the different plants species or humans. ठीक है, then some part of this radiation is already absorbed by the earth surface and some part of its incoming radiation to the earth is reflected back by the surface of earth. There is when the earth जो है यूज कर लेता है इस रेडिएशन को, जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो जब वापस में जब जब हमारा सनराइज खत्म हो जाता है यानी कि जब नाइट टाइम आता है तो नाइट टाइम में क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से टेम्परेचर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज लोअर देन द अर्थ सरफेस. तो होगा क्या कि अर्थ सरफेस एक वापस से रेडिएशन को रेडिएट करता है, यानी कि वापस से जो है उसको एमिट करता है अर्थ सरफेस एक रेडिएशन. वही रेडिएशन दैट इज यूज्ड बाय द मून, वही रेडिएशन अर्थ सरफेस से मून तक जाता है. तो यहां से एक रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिटेड होगा, यानी कि वापस से यहां पे रेडिएशन होगा. सॉरी, दिस इज नॉट द ट्रांसमिटेड रेडिएशन, दिस इज द रेडिएशन. सॉरी, तो यहां से रेडिएशन होगा, अर्थ सरफेस जो है एक एनर्जी को रेडिएट करेगा. ठीक है, इस एनर्जी को जब रेडिएट किया अर्थ सरफेस ने तो दिस एनर्जी गोज टू द एटमॉस्फेरिक लेयर. एटमॉस्फेरिक लेयर में देयर इज अ ग्रीन हाउस गैस. So there are various greenhouse gases like the carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, SF6, sulfur hexafluoride, ठीक है, water vapors, carbons. There are various greenhouse gases in the atmosphere.
So these greenhouse gases will absorb this outcoming radiated solar radiation, ठीक है, by the earth surface. एक्चुअली में होगा क्या कि जब ये रेडिएशन एमिट होगा वापस से एटमॉस्फेयर में, तो इसकी एनर्जी इज लोअर देन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. तो जब एनर्जी यहां पे कम होगी तो यहां पे लैम्डा हायर होगा. सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स. दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स. ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में जाएगा. जब ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में एटमॉस्फेरिक लेयर में टेम्परेचर ये रेडिएशन पहुंचेगा, तो दिस इज बीन द एब्जॉर्ब, सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएटेड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस एंड द एटमॉस्फेरिक लेयर्स. सम पार्ट इज रेडिएटेड टू द स्पेस. स्पेस में चला जाएगा, दैट इज यूज्ड बाय द मून, दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. And some part of its radiation is sent back to the earth, that increases the temperature of earth. यही वो रेडिएशन है जो अर्थ सरफेस और अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है. सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज रिलेटेड विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ. सो कैसे ये सबसे पहले इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया. इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशन. Transmitted radiation on our surface is further divided in 3 parts. What are the 3 parts? Reflected radiation, absorbed radiation and reflected radiation, absorbed radiation, ठीक है, and transmitted radiation. Some part अंदर transmit हो जाएगा. That radiation is further radiated by the earth surface. This radiation is further divided in 3 parts, that the radiation escape to the earth, escape to the space, absorbed radiation and radiation sent back to the earth surface. This radiation increases the temperature of earth. And what are the different pollutants on this atmosphere? These are the soot particles, dust particles, greenhouse gases, ठीक है. तो हम लोग इसके बारे में आगे चलते हैं कि how this is associated with the further greenhouse, what are the different greenhouse gases, what are the different sources of the greenhouse gases. So let's come to those points. Okay, so इनकमिंग सोलर रेडिएशंस किस तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस से रिएक्ट करता है, और व्हाट आर द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, उसको समझने के बाद में हम लोग समझते हैं हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज इंक्रीज फ्रॉम 1990s टू 2020. यानी कि 30 ईयर्स के टाइम पीरियड में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द ग्रीन हाउस गैस, उसका लेवल किस तरीके से इंक्रीज हुआ इन एटमॉस्फेयर. सो in a year 1999 there was a 354.39 parts per million. यानी कि 1 molecule of carbon dioxide is there in a atmosphere where is a 10 to the power 6 molecules of air. ठीक है, तो उतने वॉल्यूम में पार्ट्स पर मिलियन कितने 354.39 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था. ठीक है, एंड ईयर 20th मई 2020 को 417.33 417.33 ppm जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल था इन आवर एटमॉस्फेयर. दिस इज द रिसेंट डेटा. सो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज द डिफरेंस ऑफ 62.94 ppm 30 इयर्स के टाइम में इंक्रीज हुआ, विच मीन्स कि अगर हम देखें तो देयर इज अ 2 ppm पर ईयर के रेट से इंक्रीज हो रहा है इन आवर एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल. इसी लेवल के हाई होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से जो रेडिएटेड सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स बाय द अर्थ सरफेस है, वो जो है दैट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस, दैट इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो दैट इज इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर. सो इसको इंक्रीज करने के लिए कितने टन्स ऑफ कार्बन हम लोगों ने कंज्यूम किया यूजिंग द एंथ्रोपोजेनिक एज वेल एज द नेचुरल एक्टिविटीज. So we have to multiply it by the 2.12, that is 750.307 gigatons of carbon जो था emitted total, that is till the year of 1990 था. And if we take the recent data, that is the 20th May 2020 का था, तो उसके मुताबिक 2.12 से if we multiply, then that is the 884.7 tons gigatons of carbon emitted by the human as well as the anthropogenic as well as the natural activities.
So this difference is caused by the 133.432 gigatons of carbon, यानी कि 1990 से 30 years के टाइम फ्रेम में we have emitted nearly 133.432 gigatons of carbon. इतना gigatons of carbon हम लोगों ने एमिट किया जो ग्रीन हाउस गैस के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेरिक लेयर में या एटमॉस्फेरिक लेयर में पहुंचा। इसी की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना हो रहा है। सो what there is also the two phenomena that is called the global warming or second thing is the greenhouse gas या greenhouse effect. So what is the global warming and what is the greenhouse effect? So our major concern is that, so we have to look on that, what is the global warming and what is the greenhouse effect. There is a data that is if we have to convert the volume of carbon dioxide to the how much volume of how much quantity of carbon released in the atmosphere, so that is the data to convert the volume to the mass, that is the if we have to convert the 1 ppm by volume of atmospheric carbon dioxide, then we have to multiply with the multiplying factor, that is the 2.128 actually that. So gigatons of carbon using here we are using the atmospheric mass, that is the 5.137 into 10 to the power 18 kg. So now we have to look on the global warming and a greenhouse gas. So what is the global? So what is global warming? Global warming है क्या? Global warming is average temperature rise of earth in a certain time frame which increases the problems to the surrounding on earth surface, that is called the global warming. यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग इज एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ using causing anthropogenic as well as the natural activities by the release of greenhouse gases which causes the various problems or the various catastrophes on our earth's surface. So this is the global warming. And second thing is that what is greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है उसको समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं कि व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस. एक्चुअली में जो ग्रीन हाउसेज रहता है दैट इज यूज्ड ऑन द ट्रॉपिकल कंट्रीज. देयर इज अ हाउस लाइक इस तरीके का कोई डोम शेप में इस तरीके की शेप में कुछ एक हाउस रहता है. उसके अंदर में जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस रहता है दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशंस विच इज कमिंग ऑन दिस ट्रांसपेरेंट और इज ट्रांसपेरेंट लाइक द ग्लास हाउस. ठीक है, that radiation and the temperature is trapped by this glass house. ठीक है, so it increases the temperature inside the glass house and which that temperature that radiation when trapped by this and वापस से जब इस हाउस में जब रिलीज करता है तो इस हाउस में टेम्परेचर राइज हो जाता है. दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा एटमॉस्फेयर में किस तरीके से होता है उसको हम लोग समझते हैं कि हाउ दिस इज हैपेंस इन आवर एटमॉस्फेयर, हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हैपनिंग इन आवर एटमॉस्फेयर. So this is the ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को समझते हैं हम लोग आगे. इस ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को समझने से पहले वी हैव टू लुक अमाउंट द फोर्सिंग्स या एटमॉस्फेरिक फोर्सिंग्स या क्लाइमेट फोर्सिंग्स क्या है. सो क्लाइमेट फोर्सिंग और फीडबैक दो फिनोमिना होता है. ठीक है, फीडबैक का मतलब ये हुआ कि जो पॉल्यूटेंट रिलीज हुआ है एटमॉस्फेयर में वो एक्सटर्नल फैक्टर से रिएक्शन करके और फर्दर इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स को इंक्रीज इन होने की वजह से उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़े. लाइक कि देयर इज अ क्लाइमेट फोर्सिंग. इफ यू लुक ऑन द क्लाइमेट फोर्सिंग, so there are two types of climate forcings. One is positive climate forcings
यानी कि पॉजिटिव फोर्सिंग्स, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव फोर्सिंग। एक्चुअली फोर्सिंग कोई नया फिनोमिना नहीं है। फोर्सिंग इज लाइक देयर आर द फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स, वो द फैक्टर्स which increases the temperature of atmosphere. This is called the positive forcing. And negative forcing के लिए which reduces the temperature of atmosphere, यानी कि वो फैक्टर जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बोथ आर कंबाइंडली कॉल्ड द क्लाइमेट फोर्सिंग्स। देयर इज टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फोर्सिंग। फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग एंड सेकेंड वन इज अ नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग्स। So positive flow forcings are increases the temperature of earth and negative forcing are decreases the temperature. So what are the positive forcings? Like all the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and next है हमारा PFCs, perfluorocarbons, SF6 and HCFC, hydrochlorofluorocarbon. Some greenhouse gases also there, but these all are the most important greenhouse gases because these all greenhouse gases has been used in a Kyoto Protocol. So these greenhouse gases are called the Kyoto recognized greenhouse gases. Kyoto recognized GHGs या ग्रीन हाउस गैस। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा था, उस क्योटो प्रोटोकॉल में जिन ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की गई, दीज ऑल आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, PF6 एंड हमारा HCFC। ठीक है, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय ट्रैपिंग द लॉन्ग वेव्स इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स। देन निगेटिव फोर्सिंग्स क्या है? जब हमारे डस्ट या सूट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं बाय द डीजल इंजन्स एंड सम अदर फैक्टर्स लाइक द वोल्केनिक इरप्शंस, उन सब की वजह से डस्ट या शूट पार्टिकल्स जो मैंने बताया था इस स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में, अपर एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। दोज फैक्टर्स जो होते हैं वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं टू द एस्केप। सो दिस कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट फॉर द अर्थ सरफेस। सो दैट इज दीज आर फैक्टर्स आर हमारा निगेटिव फोर्सिंग देते हैं। तो ये क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स, शूट पार्टिकल्स इन अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, और क्लाइमेट फोर्सिंग के साथ में एक और फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में वो फैक्टर्स जो किसी और फैक्टर्स के चेंजेस की वजह से उसकी क्वांटिटी में चेंजेस आए, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक इन एटमॉस्फेयर। लाइक कि वाटर वेपर्स, how water vapors are feedback? Reason is that if in atmosphere long waves in the form of heat is absorbed by the greenhouse gases, all the greenhouse gases are the positive feedback। तो इन पॉजिटिव फीडबैक ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज करेगा। एंड एटमॉस्फेयर में व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर वेपर?
वाटर वेपर का सोर्स एटमॉस्फेयर में या पूरे इस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फेयर में, पूरे हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्टेटो, मेसोथर्मो, इसमें वाटर वेपर का सोर्स क्या है? दैट इज द इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडी। जो हमारी वाटर बॉडीज हैं लाइक रिवर्स, फ्लोइंग वाटर बॉडी, या लेक्स हैं, या समुद्र, सी है, ठीक है, या पॉन्ड्स हैं, या कोई ड्रेन्स है, लगून्स है, या अर्थ सरफेस है, इवेपोरेशंस है, इवेपोट्रांसपिरेशंस बाय द प्लांट्स है। ऑल दीज हैव बीन डिस्कस्ड इन अ फर्दर प्रीवियस वीडियोस ऑफ द वाटर साइकिल, जिसमें हमने समझाया था, उसमें है। सो वहां से इवेपोरेशन होगा। यही इवेपोरेशन एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के फॉर्म में जाएगा। अब देखिए, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स रहेगा, ये भी एक तरीके से पॉजिटिव फोर्सिंग ही देगा, यानी कि टेम्परेचर तो वाटर वेपर जो है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये भी जो वाटर वेपर्स भी लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स। देखिए, वाटर वेपर भी लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। लेकिन इस टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट वाटर बॉडी के इवेपोरेशन पे आएगा। जो वाष्पीकरण होगा उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो ऑन सरफेस ऑफ वाटर बॉडी पे हमारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वो एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इवेपोरेशन बढ़ने की वजह से वाटर वेपर फिर से बढ़ेगा, फिर इस वाटर वेपर की बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन बढ़ेगा, फिर इवेपोरेशन बढ़ने की वजह से वाटर वेपर बढ़ेगा। तो ऑल दिस कंबाइंड, ओके, ये कंबाइंड है। दिस इज व्हाट वी विल कॉल द फीडबैक मैकेनिज्म। बट क्लाइमेट फोर्सिंग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइमेट फोर्सिंग के केस में ऐसा नहीं है। क्लाइमेट फोर्सिंग में जो ये ग्रीन हाउस गैस है ये डिफरेंट सोर्सेस की वजह से एटमॉस्फेयर में आ रही है, ठीक है। दीज ग्रीन हाउस गैस है डिफरेंट सोर्सेल एज वेल एज नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में आ रही है। टेम्परेचर राइज होने से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो है हमारा एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज कराता है, लेकिन टेम्परेचर राइज होने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दैट वाटर वेपर्स की क्वांटिटीज में फर्क पड़ता है। देयर इज ऑल्सो अ वन पोर्शन दैट इज द ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन भी हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज करता है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट वेव्स या एब्जॉर्बिंग द लॉन्ग वेव्स इन एटमॉस्फेयर। सो हम लोग समझ रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, हाउ दीज ग्रीन हाउस गैसेस इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर राइज एंड अ ग्लोबल वार्मिंग इन आवर एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स और द रेजिडेंस टाइम या लाइफ टाइम्स फॉर विच दीज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस आर स्टेड इन आवर एटमॉस्फेयर, यानी कि कितने समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं, उसका कितना टाइम है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर। सो लेट्स लुक ऑन दैट। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कि 100 ईयर्स में एक ग्रीन हाउस गैस कितने अमाउंट ऑफ कितना टेम्परेचर राइज करता है। तो उसके लिए बेस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया गया है, बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 100 ईयर्स में कितना टेम्परेचर राइज करता है, दैट इज द 1 यूनिट, यानी कि अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज बाय द कार्बन डाइऑक्साइड्स का 1 पार्टिकल्स इन आवर एटमॉस्फेयर इन 100 ईयर, दैट इज कॉल्ड द 1 यूनिट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। Because the residence time of carbon dioxide in
100 ईयर्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा देन दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर टिल द टाइम फ्रेम ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जो ग्रीन हाउस गैस है दैट इज मीथेन। मीथेन जो है दैट इज 20 टाइम्स मोर, it has the more than 20 times of greenhouse global warming potential than the carbon dioxide, यानी कि 21 गुना टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। बट इसका रेजिडेंस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत कम है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अगर ये CH4 मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये 12 ईयर्स तक ही रहेगा और हमारा टेम्परेचर राइज करता रहेगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर राइज दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है, नियरली 21 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? दैट इज द फॉसिल फ्यूल कंजम्पशंस लाइक कोल, कोक वगैरह को जो हम लोग यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग, ठीक है, एंड वेरियस जब मोटर व्हीकल्स एग्जॉस्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड्स निकलता है, नेचुरल सोर्सेज से निकलता है लाइक द रेस्पिरेशंस में, एंड जो रेस्पिरेशंस बाय द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द प्लांट स्पीसीज एंड वेरियस अदर स्पीसीज, सो उसके पे निकलता है। नेक्स्ट जो है एरोबिक डिकम्पोजिशंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। एक्चुअली में जब ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर उसका डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोज्ड जो हमारा सोर्सेज है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल आएगा दैट इज डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। सो एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स में, यानी कि डिफरेंट एरोबिक सोर्सेज जो हमारे रहते हैं इन अ वेस्ट वाटर या डिफरेंट सोर्सेज में, तो उसमें एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स जो होगा उसमें जो एरोबिक डिकम्पोजिशंस में भी CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देन द नेचुरल कार्बन साइकिल्स जो है, नेचुरल कार्बन साइकिल क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस में जो प्रोड्यूसर या प्लांट्स होंगे वो दीज प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन देयर फोटोसिंथेसिस साइकिल में यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और उसके बाद में ग्लूकोज फ्रक्टोज के फॉर्म्स में उसको तोड़ करके, ठीक है, ग्लूकोज ट्राइफॉस्फेट्स के फॉर्म्स में ले जा करके, ठीक है, देन उसमें वापस से हमारा उसके लिए अपने लिए एनर्जी बनाएंगे यूज अप करने के लिए, देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलेगा। सो उसमें और फिर उसके बाद में नेचुरल कार्बन साइकिल्स में नाइट में जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस और ऑक्सीजन को लेंगे तो उस समय पे नेचुरल कार्बन साइकिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा इन एटमॉस्फेयर। फिर क्या है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं ड्यूरिंग यूजिंग द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस में लाइक द डिफरेंट थर्मल पावर प्लांट्स, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो हमारा कोल को लेते हैं, ठीक है, और उस कोल को हीट अप करके, कोल को बर्न करके, कंबस्शन करके और बॉयलर्स में वाटर को हीट करते हैं। सो उसके द्वारा वेरी हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन आवर एटमॉस्फेयर। देन वी हैव द मीथेन। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मीथेन? Different sources of methane are as follows, like the anaerobic decomposition. Here is the aerobic decomposition of organic matter. Here is the anaerobic decomposition of organic matter, यानी कि in the absence of oxygen जब हमारा डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, then that is called the anaerobic decomposition of organic matter. और जो डिफरेंट टर्माइट्स हैं या अदर जो लाइव स्टॉक्स रहता है ड्यूरिंग देयर डाइजेस्टिव प्रोसेस लाइक द बफेलोज, गोट्स वगैरह हैं, उनके डाइजेशन में, डाइजेस्टिव प्रोसेस के बाद में डिफरेंट गैसेस के फॉर्म में ये मीथेन निकलता है। देन वेटलैंड से निकलता है, सॉरी, हियर इज ऑल्सो वी हैव टू पुट द ओशन सेडिमेंट, देयर इज ऑल्सो द वेटलैंड्स। वेटलैंड से भी मीथेन हमारा निकलता है इन अवर एटमॉस्फेयर। देन नेचुरल गैस प्रोडक्शन में मीथेन सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है। देन वी हैव द नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत हाई है, दैट इज 310, ठीक है, और रेजिडेंस टाइम भी एटमॉस्फेयर में 120 ईयर्स तक रहता है, ठीक है।
तो ये हमारा, लेकिन है क्या कि क्वांटिटी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज वेरी वेरी लो, यानी कि उसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में नाइट्रस ऑक्साइड की क्वांटिटी काफी कम है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? एक्चुअली में जो नाइट्रस ऑक्साइड का एक नेचुरल सोर्स है इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो जो अर्थ की जो नाइट्रोजन साइकिल है। सो व्हाट इज द नाइट्रोजन साइकिल? क्या है कि जब हमारा जब प्योर जब नाइट्रोजन होता है तो उस नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए और फिर वापस से उसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद फिर वापस से डीनाइट्रिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया यूज होते हैं। सो जब फ्री नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को हमको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, तो देयर इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप प्रोसेस में जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है, तो अगर वहां पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, देन देयर विल बी अ नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन। सो व्हाट इज द बैक्टीरिया इज देयर? तो नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है और ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में या नाइट्रेट के फॉर्म में फिर अगर उसको कन्वर्ट करना है, तो पहले स्टेप में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया लगाता, सेकेंड स्टेप में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। एक बार नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रेट के फॉर्म में हो गया, फिर डीनाइट्रिफिकेशन में हम लोगों को स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में नाइट्रेट जो है वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में डीनाइट्रिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। देन जो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और कई फॉस्फेट्स भी रहता है, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स बोथ रहता है। वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो उसके बाद में फर्टिलाइजर्स होता है, फर्टिलाइजर से निकलता है। फिर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है या एग्रीकल्चर रन ऑफ जाता है, वहाँ पे भी जब एग्रीकल्चरल रन ऑफ गया और किसी जगह जा करके वहाँ पे रिवर में या उस जगह पे वेस्ट हुआ, तो वापस से जब वेटलैंड में हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन भी होगा और जो नाइट्रोजन गया उस नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड SF6। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन has the global warming potential of 140 to 11,700 and it has the time period of 1 to 270 years. PFC has the 6500 to 9200, 800 to 550,000 years जो है इसका रेजिडेंस टाइम है। एंड SF6 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है दैट इज द 23,900 and it has the time period of how much time it will remain in atmosphere, that is the 3,200। ठीक है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन जो है ये एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम लोग जब अभी आगे चल के अगर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और ओजोन डिस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा। बट इतना जान लीजिए कि जो सब्स्टिट्यूट था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था, लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर्स में या प्रोपेलेंट्स में, रेफ्रिजरेंट्स के फॉर्म में या एयर कंडीशंस में यूज किया करते थे टिल द ईयर ऑफ नियरली 1976-75 के। उससे पहले हम लोग यूज करते थे NH3 को। NH3 को यूज करने के बाद हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करना शुरू किया, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल बहुत हाई था। उस ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल को कम करने के लिए हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूट खोजा, दैट इज द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। बट दिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैज लोअर ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल बट हैज इज अ वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो बिकॉज हेयर इज 11,700 के आसपास इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल था। ठीक है, फिर हमारा सोर्स आता है SF6 का, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इसका ये परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है मैग्नीशियम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या सर्किट ब्रेकर की जगह पर हम लोग इस सर्किट ब्रेकर के मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत यूज होता है। और फर्दर जो ट्रेसर गैस होता है, मतलब जो गैस का जो लीकेज डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, उसके लिए एक ट्रेसर गैस यूज किया जाता है। उस ट्रेसर गैस की जगह पे भी हम लोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज करते हैं। देयर इज अ
टू मोर गैसेज लाइक द वाटर वेपर्स है ना कार्बन, ठीक है, कार्बन देयर इज अ टू फॉर्म, ब्लैक कार्बन है ना ब्राउन कार्बन। सो वाटर वेपर का मेन सोर्स जो है दैट इज वो वाटर वेपर जो टाइम पीरियड है बहुत कम है, मतलब शॉर्ट लिव्ड रहता है, बट इसका पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो है ही है, ठीक है, बट इसका सोर्सेज एक ही है, इवेपोरेशन, ठीक है, एज आई टोल्ड प्रीवियसली। देन वी हैव द कार्बन। So what are the different sources of carbon in an atmosphere? There are basically the 2-3 sources या major sources are the combustion of organic matter, biomass consumption, कुकिंग फ्यूल, मतलब अगर होम में घर में अगर कुकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है, वहां से निकलता है। और स्मोक फ्रॉम एग्रीकल्चर फायर, लाइक वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ हरियाणा एंड अदर स्टेट्स वेयर द स्टबल बर्निंग इज टेकिंग प्लेस, लाइक द, अगर हम एग्रीकल्चर जब कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर द, जब क्रॉप्स को हम लोग काट लेते हैं, क्रॉप काटने के बाद में जो उसका जो वेस्ट रह जाता है, उस वेस्ट को उसी लैंड पे जब बर्न कर देते हैं, सो दैट वी डू नॉट हैव द मेन्योर को ट्रीट करने की यूज ना पड़े, तो उस जगह पे जो बर्निंग करते हैं उसकी वजह से स्मोक डस्ट वगैरह निकलता है, तो दैट इज द कार्बन इन आवर एटमॉस्फेयर। एंड all these are the global greenhouse gases, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस विद डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड थियरी, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, what are the different levels of carbon dioxide and how the carbon dioxide level is increases from 1990s level to 2020. What are the different climate forcings are there? What different climate forcings like the positive and the negative forcings? How positive forcings, what are the different positive forcing and what are the negative forcings? Difference between the climate forcing and a feedback. Then we have got through the knowledge of the global warming, how global warming takes place in our atmosphere, what are the sources of global warming. Then greenhouse gases, what are the different greenhouse gases, which portion of greenhouse gases are higher amount of global warming potential. Greenhouse gases which are recognized at in the Kyoto Protocol, like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbon, sulfur hexafluoride and perfluorocarbons. Then apart from that, what are the different sources of all these greenhouse gases? So we have got through the knowledge of all these 5 parameters in our lecture, in this lecture. Then in a next point we have to got through about the what are the different impacts of global warming in our atmosphere. Then we have to gone through about the different protocols, conventions and what are the different climate change impacts are there, ठीक है। आज हम लोगों ने ये डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में समझा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल बटन्स को दबाएं और ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।